بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر محمد مرتضیٰ شہزاد فرام سٹی کالج آف سائنس اینڈ کامرس. آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں راؤنڈ 4 ٹیسٹ 5 کلاس سیکنڈ ایئر. سبجیکٹ ہمارا اکنامکس ہے. فرسٹ MCQs. وچ ٹائپ آف ٹیکس از انکم ٹیکس ان پاکستان؟ پاکستان میں انکم ٹیکس کس قسم کا ٹیکس ہے؟ آپشنز دی ہوئی ہیں. آپشن اے ہے پروپورشنل ٹیکس, آپشن بی انڈائریکٹ ٹیکس, آپشن سی پروگریسو ٹیکس, اور آپشن ڈی ہے ہمارا ریگریسو ٹیکس. ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ انکم ٹیکس ہمارا کس ٹائپ کا ٹیکس ہے, کہ وہ ٹیکس پروپورشنل ٹیکس سسٹم میں آتا ہے, انڈائریکٹ ٹیکس میں آتا ہے, پروگریسو میں ہے یا ریگریسو میں. تو پاکستان میں انکم ٹیکس پروگریسو ٹیکس ہے, متزاید ٹیکس ہے. انکم بڑھے گی تو ٹیکس ریٹ بھی بڑھ جائے گا, انکم کم ہوگی تو ٹیکس ریٹ بھی کم ہو جائے گا. کریکٹ آپشن ہماری سی ہے. دا ٹیکس سسٹم ان پاکستان از انف. پاکستان میں ٹیکسوں کا نظام کافی حد تک, آپشن اے ہے الاسٹک, آپشن بی ان الاسٹک, آپشن سی کمپلیکس, آپشن ڈی انسرٹن. ٹیکس سسٹم, پاکستان کا ٹیکس سسٹم کیسا ہے؟ الاسٹک, لچکدار, جب چاہیں اس میں چینجز کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ان الاسٹک, چینجز نہیں کر سکتے. اگر کمپلیکس, بہت پیچیدہ ہے, مشکل ہے. انسرٹن, غیر یقینی ہے. تو آپشن ہماری کیا ہے؟ بی ان الاسٹک ہے. پاکستان کا ٹیکس سسٹم ریجڈ ہے, اس میں ہم چینجز نہیں کر سکتے. کرنا چاہیں تو ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سپوز اگر گورنمنٹ انڈائریکٹ ٹیکس, سیلز ٹیکس کو بڑھا دے تو کیا بڑھا سکتی ہے فوراً سے؟ نہیں بڑھا سکے گی, اس کو پرابلم فیس کرنی پڑے گی. تو پاکستان میں ٹیکس سسٹم ان الاسٹک ہے, غیر لچکدار ہے. وچ گورنمنٹ ریسیو رجسٹریشن فیس؟ رجسٹریشن فیس کون سی گورنمنٹ وصول کرتی ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کرتی ہے, یا لوکل گورنمنٹ کرتی ہیں, یونین کونسلز کرتی ہیں؟ آپشن اس کی اے فیڈرل گورنمنٹ, آپشن بی پروونشل گورنمنٹ, آپشن سی لوکل گورنمنٹ, آپشن ڈی ہے یونین کونسلز. تو آپشن ہماری بی جو ہے کریکٹ آپشن ہے. رجسٹریشن فیس جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ لیتی ہیں. ایٹ وٹ نمبر آف کیمل زکوٰۃ از کمپلسری؟ اونٹوں کی کتنی مقدار پر زکوٰۃ فرض ہے؟ زکوٰۃ کی فرضیت کے ٹاپک میں سے یہ کویسچن لیا تھا. آپشن اے ہے 5 اونٹوں پر 1 اونٹ کی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, آپشن بی 7 اونٹوں پر 1 اونٹ کی زکوٰۃ, آپشن سی 10 اونٹوں پر, یا آپشن ڈی 11 اونٹوں پر. تو آپشن ہماری کریکٹ ہے جی اے, 5 اونٹوں پر 1 اونٹ کی زکوٰۃ فرض ہوگی. ہاؤ مچ پرسنٹیج آف انکم فیڈرل گورنمنٹ ریسیوز فرام نان ٹیکس سورسز؟ مرکزی حکومت اپنی آمدنی کے کتنے فیصد غیر محصولاتی ذرائع سے حاصل کرتی ہے؟ نان ٹیکس ریونیو. گورنمنٹ کے دیکھیں 2 طرح کے ریونیو ہوتے ہیں, ٹیکس ریونیو اور نان ٹیکس ریونیو. تو گورنمنٹ کو نان ٹیکس ریونیو جو ہے, نان ٹیکس ریونیو سورسز سے کتنے پیسے ملتے ہیں؟ آپشن اے 18%, آپشن بی 21%, آپشن سی ہے 25%, آپشن ڈی ہے 35%. آپشن ہماری سی کریکٹ ہے جی 25%. یہ ریٹ جو ہے وہ ہمیں کرنٹ بک کے دیکھنے چاہیے, کیونکہ یہ چینج ہوتے رہتے ہیں. ہم نے فی الحال اس بک سے اس کو فالو کیا تھا, وہ 25% ہے. ہاؤ مچ پارٹ آف دا اشر از فرام دا پروڈکشن آف آرٹیفیشل اور دا کینال اریگیشن لینڈ؟ نہری یا مصنوعی آبپاشی کی پیداوار میں سے اشر کا حصہ کتنا بنتا ہے؟ اشر 2 طرح کی, ایک تھا کینال اریگیٹڈ ایریا اور دوسرے تھے بارانی ایریا. اس پر اس کی پرسنٹیج ڈفرینٹ تھی. تو ہم پوچھ رہے ہیں کینال اریگیٹڈ ایریا میں اشر کتنا بنتا ہے؟ آپشن اے ہے 20%, یہ 20, اس کا 20واں حصہ, 14th 40 40واں حصہ, 10th 10واں حصہ, یا 5th اس کا 5واں حصہ. تو آپشن اے ہماری کریکٹ آپشن ہے جی, اس کا 20واں حصہ بنتا ہے, 20th پارٹ. 7th MCQ ہمارا میجر ایکسپورٹ آف پاکستان آر؟ پاکستان کے سب سے زیادہ برآمدات ہیں کن ممالک کی طرف ہیں؟ ڈیولپنگ کنٹریز, آپشن اے, آپشن بی ڈیولپڈ کنٹریز کی طرف ہیں, آپشن سی ہے ویسٹرن یورپین کنٹریز, آپشن ڈی ہے اسلامک کنٹریز. کریکٹ آپشن ہے جی اسلامک کنٹریز. ہماری زیادہ تر تجارت اسلامک ممالک کے ساتھ ہوتی ہے. وچ از امپورٹنٹ ایکسپورٹ آف دا پاکستان؟ پاکستان کی سب سے اہم ترین برآمد کون سی ہے؟ آپشن اے ٹی, آپشن بی رائس, آپشن سی ویٹ, آپشن ڈی ہے آئل سیڈ. تو ہم رائس ایکسپورٹ کرتے ہیں, باقی سب چیزیں ہم باہر سے امپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو آپشن بی ہماری رائس کہلائے گی, چاول. ڈیش از انکلوڈیڈ ان پاکستان امپورٹ؟ پاکستان کی بڑی درآمدات میں شامل ہے. آپشن اے پیٹرولیم پروڈکٹ, آپشن بی فش,
ऑप्शन सी फ्रूट, ऑप्शन डी क्लॉथ। तो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही बाहर से ज़्यादा मंगवाते हैं, हमारी ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। व्हेन वाज सेट अप कॉटन एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान, कपास की बरामदी कॉरपोरेशन का क़याम कब अमल में आया? नवंबर 1973, सितंबर 1977, जुलाई 1981 और जनवरी 1982। तो हमारी ये कॉरपोरेशन नवंबर 1973 में बनी थी, करेक्ट ऑप्शन हमारी ए। व्हेन वाज स्टार्टेड द स्कीम ऑफ अर्न एंड पे, कमाओ और अदा करो स्कीम का आगाज़ कब हुआ? ऑप्शन ए 1959, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1962 और ऑप्शन डी है 1964। करेक्ट ऑप्शन सी है जी 1962। व्हेन वाज एक्सपोर्ट बोनस स्कीम स्टार्टेड, एक्सपोर्ट बोनस स्कीम का इजरा किस साल में हुआ? ऑप्शन ए 1957, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन डी 1972, ऑप्शन डी 1955। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन है जी 1959, अयूब खान के दौर में ये स्कीम शुरू हुई थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ पाकिस्तान रिमेन इन 1955-56, 1955-56 में पाकिस्तान की अदायगियों का तवाज़ुन रहा, क्या रहा जी? ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी अनफेवरेबल, ऑप्शन सी बैलेंस, ऑप्शन डी जो है वो नन। तो हमारा ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल रहा था। फेवरेबल या पॉजिटिव पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ 3 दफ़ा ही हुआ था। पहला 1949 में जब कोरियन बूम था, दूसरा 1959 में जब एक्सपोर्ट बोनस स्कीम शुरू हुई थी, तीसरा 1972 में जब करेंसी की डिवेल्यूएशन की गई थी, तब हमारा फेवरेबल रहा है। बाकी सारे पाकिस्तान की पूरी ज़िंदगी में बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल ही रहा है। तो हमेशा कोई भी साल यहाँ पर चेंज करके वो लिख दे। इन 3 साल के अलावा 1949, 1959 और 1972, इसके अलावा बाकी तमाम सालों में हमारा डेफिसिट में ही रहा है, अनफेवरेबल रहा है। व्हेन वाज सार्क सेट अप, सार्क का क़याम कब हुआ? ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1983 और ऑप्शन डी है 1980s। तो 1980 में सार्क का क़याम अमल में आया था। साउथ एशियन कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है हमारी। इन विच ऑर्गेनाइजेशन दोज इस्लामिक स्टेट सेपरेटेड फ्राम रशिया आर इंक्लूडेड, किस तंजीम में रूस से अलहदा शुदा इस्लामी रियासतें भी शामिल हैं? ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकनॉमिक कोऑपरेशन ECO, मुआशी ताउन की तंजीम, बी सार्क कंट्रीज, सार्क ममालिक, सी है OIC, इस्लामिक कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है, और डी नन। तो देखें सार्क जो थी वो साउथ एशियन है, OIC इंटरनेशनल इस्लामिक कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकनॉमिक कोऑपरेशन पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के ताउन से बनाई गई थी, और फिर उससे रशिया से अलहदा होने वाली स्टेट्स भी इसमें शामिल हो गई थी। तो ये ऑप्शन ए हमारी करेक्ट ऑप्शन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकनॉमिक कोऑपरेशन, मुआशी ताउन की तंजीम। मेंबर ऑफ द सार्क ऑर्गेनाइजेशन, सार्क तंजीम का मेंबर है इन ममालिक में से कौन सा मुल्क है जी? ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी है फ्रांस। साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं जी, तो इसमें बांग्लादेश ही आता है हमारा, बांग्लादेश इसकी करेक्ट ऑप्शन है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव फॉर प्रोटेक्शनिज्म इज़, तामीन की पॉलिसी का बुनियादी मकसद होता है। ऑप्शन ए डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड, ऑप्शन बी प्रोटेक्शन ऑफ इन्फेंट इंडस्ट्रीज, ऑप्शन सी इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, ऑप्शन डी इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज। तो प्रोटेक्शनिज्म का मतलब तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, उसको हिफाजत करना। तो ऑप्शन बी हमारी करेक्ट ऑप्शन है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्फेंट इंडस्ट्रीज़, नौज़ायद सनतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। 18 MCQs टू रिड्यूस द डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, अदायगी के तवाज़ुन में खसारे को दूर करने में मदद करता है। कौन सा इदारा इसमें से हमारी मदद करता है हमारे डेफिसिट को ख़त्म करने में? पहले ऑप्शन ए IMF, ऑप्शन बी WTO, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक और ऑप्शन डी है जी UNO। तो जी ऑप्शन ए इसकी करेक्ट ऑप्शन है, IMF हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट होता है उसको कवर करने के लिए लोन देता है। WTO जो है वो ट्रेड के लिए बना हुआ है, फ्री ट्रेड के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड बैंक जो है वो प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देता होता है, ये आपको इसके लिए कर्जा नहीं देगा।
UN यूनाइटेड नेशंस है हमारी, तो करेक्ट ऑप्शन IMF था. इन विच सिस्टम ज़कात एंड उशर आर कंपल्सरी, किस निज़ाम में ज़कात और उशर की अदायगी लाजमी करार दी गई है? ऑप्शन ए इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम, ऑप्शन बी फ्री इकनॉमिक सिस्टम, ऑप्शन सी है सोशलिज्म में, और ऑप्शन डी मिक्स इकनॉमिक सिस्टम में. तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ज़कात हमारे इस्लामिक सिस्टम में ही है, बाकी सब में सूद या कोई और जो है वो पेमेंट्स होती हैं. अथॉरिटी इन कैपिटलिज्म इज़ ऑफ, सरमायादाराना मौशी निज़ाम में हाकमियत होती है, किसकी हाकमियत होती है? ऑप्शन ए प्रोड्यूसर की, ऑप्शन बी कंज्यूमर की, ऑप्शन सी गवर्नमेंट की, ऑप्शन डी बिजनेसमैन की. तो ऑप्शन ए हमारी करेक्ट ऑप्शन है, आजिर की. सरमायादाराना मौशी निज़ाम में आजिर की अथॉरिटी होती है, वो जो चाहे मर्जी कर सकता है, प्राइस बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, प्रॉफिट बढ़ा सकता है, वगैरह वगैरह. सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ आ गए जनाब. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय प्रोपोर्शनल टैक्स? मुतनासिब टैक्स से क्या मुराद है? इट इज़ अ टाइप ऑफ टैक्स रेट, इट इज़ अ टाइप ऑफ टैक्स इन विच रेट ऑफ टैक्स रिमेन फिक्स एज इनकम इंक्रीज और डिक्रीज, देर इज़ नो चेंज इन प्रोपोर्शनल टैक्स रेट. टैक्स रेट जो है वो चेंज नहीं होगा. टैक्स की एक ऐसी किस्म जिसमें टैक्स की शरह मुअय्यन रहती है, आमदनी में इजाफा या कमी से टैक्स की शरह कम नहीं होती, ये हमारा प्रोपोर्शनल टैक्स होता है. What is meant by water rate? आबियाना से क्या मुराद है? It is a type of tax which is imposed on irrigation facilities in agriculture sector. शोबा ज़राअत में आबपाशी की सहूलियात पर लगने वाला टैक्स आबियाना टैक्स होता है. फार्मर पर टैक्स लगता है ये वाटर रेट के नाम से. फार्मर जो नहरी पानी इस्तेमाल करता है उस पर जो टैक्स देता है उसे वाटर रेट कहते हैं. What is meant by ज़कात? ज़कात से क्या मुराद है? ज़कात is a religious obligation which is imposed on साहिब निसाब, the one who owns a fixed amount of the wealth. ज़कात एक ऐसी माली इबादत है जो साहिब निसाब मुसलमान पर फ़र्ज़ है. मतलब एक शख्स जो काबिल निसाब है, जो पैसे जिसके पास काफ़ी दौलत है, 7.5 तोला सोना था, 52 तोले चांदी थी, और उसके बराबर कोई अगर आपके पास निसाब है, दौलत है, तो उस पर 2.5% के हिसाब से ज़कात फ़र्ज़ थी. तो ज़कात इज़ अ रिलीजियस ऑब्लिगेशन, ये टैक्स नहीं है, ये मजहबी फरीज़ा है हमारा, विच इज़ इम्पोज ऑन साहिब निसाब. टैक्स तो देखें ना, तब सब लोगों पर लग जाएगा, किसी पर थोड़ा किसी पर ज़्यादा, लेकिन ज़कात ये नहीं है किसी पर थोड़ी किसी पर ज़्यादा. जो साहिब निसाब हैं वो देंगे ज़कात, और जो साहिब निसाब नहीं है वो ज़कात लेंगे. तो ज़कात इज़ अ रिलीजियस ऑब्लिगेशन विच इज़ इम्पोज ऑन साहिब निसाब पर्सन. What is meant by उशर? उशर से क्या मुराद है? उशर इज़ अ टाइप ऑफ ज़कात विच इज़ इम्पोज ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर. ये भी ज़कात ही है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर आती है. हमारी बारानी इलाकों में जितनी भी पैदावार होगी उसका 10वां हिस्सा ज़कात दी जाएगी या उशर दिया जाएगा, और किनाल इरीगेटेड एरिया, मैदानी इलाके, यहाँ पर जितनी भी हमारी पैदावार होती है उसका 20वां हिस्सा, मतलब 5% जो है वो उशर दिया जाएगा. What is meant by unfavorable term of trade? गैर मुवाफिक निस्बत दरामद बरामद से क्या मुराद है? Term and condition on which international trade between two countries take place is called term of trade. इसे तो निस्बत दरामद बरामद कहा जाता है. दो ममालिक के दरमियान दरामदात बरामदात के असूल व कवायद निस्बत दरामद बरामद कहलाते हैं. अगर ये टर्म ऑफ ट्रेड आपके ख़िलाफ़ हो, देखिए अगर अमेरिका के साथ हम ट्रेड कर रहे हों, $1 1 रुपये के बराबर हो, तो ये इक्वल टर्म ऑफ ट्रेड है. लेकिन अगर $1 160 रुपये के बराबर है तो ये हमारा अनफेवरेबल टर्म ऑफ ट्रेड है, कि हमारे आपस में ट्रेड जो हो रही है वो अनफेवरेबल हो रही है. उम्मीद है आपको इस पेपर के भी तमाम MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ चुके होंगे. अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना चाहें तो अपने इंचार्जेस से और मुझसे पूछ सकते हैं. बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.